incurred during the accounting year. However, the profit and loss account figure, the figure of profit you get from the statement of profit and loss, does not guarantee that there is a sufficient cash available in the firm so that the company can pay dividend and other liabilities in spite of having larger amount of profit. Similarly, when we talk of balance sheet shows the overall financial position including the cash or bank position as on a particular date. Apart from the figures of profit and the financial position we get from different financial statements, the users of the financial statements, there may be internal user, there may be external user. The users of financial statement need information on liquidity, viability, and financial adaptability of the entity concerned. Hence, there arises a need to prepare cash flow statement as it provides the vital information about the cash flows of a particular entity during an accounting period. Now, what is cash? Cash basically, in general terms, we say it's hard currency, notes, and coins. But while preparing cash flow statement, it includes cash equivalents also, which I'll discuss later on. There are some technical terms which will be used in cash flow statement. The first is cash, which is the cash in hand, cash at bank, currency notes and deposits with the bank. Now coming to the cash equivalents, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कैश के बराबर हम मानते हैं? Now cash equivalents are the short term highly liquid investments that are readily convertible into the amount of cash. ऐसी कोई भी लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो कि आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपकी कैश इक्विवेलेंट मानी जाती है. जैसे समटाइम्स you have your bank account and the bank gives you the option of bank overdraft. आपके पास अगर बैंक में आपने अकाउंट खोल रखा है और उसमें 1 लाख रुपए का आपने बैलेंस आपका अकाउंट में है और आप कहीं पे भी चेक दे रहे हैं 1,20,000 लेट्स से, आई एम जस्ट अज्यूमिंग द फिगर, वो 20,000 की अगर आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट बैंक ने दी हुई है तो आपका चेक क्लियर हो जाएगा एंड देन बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यू आर गेटिंग फ्रॉम योर बैंक, that will be the limit will be taken as the cash equivalent. Now you may have the bills of exchange, you may have borrowings, you may have money market instruments. Money market instruments may you just have to see what is the maturity time period. In case the maturity of money market instruments is 3 months or less than that from the date of acquisition, then only you will consider that money market instrument as the cash equivalent. However, if the maturity time is more than 3 months, then the deposit will not be considered as cash equivalent. Similarly, you have accounts receivable, accounts payable, investment in share portfolios. These items cannot be treated, cannot be considered as cash equivalents. The second term was the flow. In cash flow statement दूसरी टर्म थी फ्लो. फ्लो का इन जनरल मतलब क्या होता है? बहना, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, मूव करना बेसिकली. अब अगर हम इन दो टर्म्स को कंबाइन कर दें, कैश फ्लो का क्या मतलब है कि कैश आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, या तो कहीं से आपके पास पैसा आ रहा है या कहीं पैसा आपके पास से जा रहा है. दैट मीन्स कैश इनफ्लो. तो कैश इनफ्लो अगर की हम बात करते हैं तो कैश इनफ्लो, इफ द कैश इज कमिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस में अगर बाहर से किसी भी सोर्स से पैसा अंदर आ रहा है बिजनेस में, इट विल बी अ कैश इनफ्लो. एंड कैश आउटफ्लो मीन्स कि आपने कहीं कैश जो आपके पास अवेलेबल था या कैश इक्विवेलेंस के, वो आपने किसी भी यूज में खर्च कर दिए हैं, पैसा आपके पास से बाहर चला गया है. That will be your cash outflow. Now, third word in cash flow statement is the statement. Statement in general terms is any written document. Now, what do you mean by cash flow statement? Cash flow statement का मतलब है कोई भी एक written document, कोई भी एक written statement
जो कि आपको एक अकाउंटिंग पीरियड के रिलेटेड सारे कैश फ्लोज को रिकॉर्ड करके दिखाती है. Any statement which shows all the cash and cash equivalent flows during an accounting period of any entity is the cash flow statement. चाहे पैसा कैश में आया है, चाहे कैश आपके पास से गया है, वो सारी की सारी एंट्रीज आपने किसी भी एक डॉक्यूमेंट में जहां रिकॉर्ड की हैं वो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है. कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं विच इन्वॉल्व्स द ट्रांजैक्शन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर बेसिकली टू बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं. तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटीज होती हैं उनको हमें 3 एक्टिविटीज में कैटेगराइज करना आना चाहिए. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जो आपकी 3 तरीके की एक्टिविटीज़ हैं उनको कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लासिफिकेशन जो होती है कैश फ्लो में, जो फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक पूरा पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है. उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर हम लिखते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और लास्ट में हम मेंशन करते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. जस्ट टू मेक यू क्लियर in a simple manner, I'm just discussing these 3 types of activities in the reverse order. I'll discuss first the cash flows from financing activities. जब भी हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी सब्जेक्ट्स में ये पढ़ा है कि एन आइडिया नीड्स टू बी जनरेटेड इन योर माइंड. जब तक आपके पास आइडिया ही नहीं है आप बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे. आपके पास आइडिया आएगा, फिर आप उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे, रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पैसा, कैश. जब आप बिजनेस के लिए पैसे की आपको जब जरूरत है तो या तो आप अपना कैपिटल लगाएंगे, अपना पैसा लगाएंगे या कहीं से बाहर से अरेंज करेंगे. व्हेन एज द बिजनेस अकाउंट्स में आप इन्हें पढ़ा है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. बिजनेस और बिजनेस ओनर की जो आइडेंटिटी है वो अलग होती है. When we talk of cash flow from financing activities, it basically involves the cash flows. Now, when I talk of cash flows, it means cash inflow भी हो सकता है और cash outflow भी हो सकता है. कोई भी कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस अगर होते हैं, if there is any change in the capital structure of the organization, either it's a cash flow or it is a cash inflow, it will be treated as cash flows from financing activity. आपने जब बिजनेस में पैसा लगाया है तो हम जनरली ये कहते हैं कि बिजनेस में मेरी कैपिटल इतनी है. अब वो जो कैपिटल है या जो बिजनेस में मैंने पैसा लगाया है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, it can be in the form of preference share capital, it may be in the form of long term borrowings that is debentures. वो भी मैंने पैसा फाइनेंस किसी से करा के पैसा उसमें डाला हुआ है, मेरे बिजनेस में पैसा लगा हुआ है. और अगर इनमें से आपने किसी में भी कोई चेंजेस किए हैं, चाहे वो इंक्रीज है चाहे वो डिक्रीज है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट. एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स आपकी कंपनी में पैसा क्यों लगाएंगे? जाहिर बात है कोई ना कोई रिटर्न लेने के लिए. द डिविडेंड हैज टू बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स may get the dividend and interest is paid to the डिबेंचर होल्डर्स. ये आपके रिटर्न के फॉर्म है शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स. अगर आपने डिविडेंड पे किया है या इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर होल्डर्स को तो आपके पास से पैसा गया होगा. दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अगर मैं उसको स्पेसिफाई कर दूं तो दैट विल बी कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि इंटरेस्ट या डिबेंचर्स होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अगर आपने पे किया है और इन केस डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो डिविडेंड या इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. However, there is a condition. अगर मान लीजिए कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी है और अगर कंपनी का
फाइनेंसिंग का नेचर नहीं है, तो उसमें केसेस अलग हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू दी, अब आपके पास पैसा आ गया। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के एसेट्स परचेज करेंगे, जिनको हम नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स भी कह देते हैं। व्हेन यू इन्वेस्ट इन दोज टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आप उसमें जब पैसा लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, या आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो वो जो पैसा होगा, तो उसके थ्रू, उन एक्टिविटीज के थ्रू पैसा अगर आएगा तो दैट विल बी कैश इनफ्लो। एंड इफ यू सेल, अगर पैसा आपने इन्वेस्ट किया तो पैसा चला जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। और अगर आप उनको बेच देंगे, कोई भी फिक्स एसेट, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है, आपने परचेज किया, तो जब परचेज करोगे तो यू विल गेटिंग द प्लांट एंड मशीनरी एंड कैश विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो जब कैश फ्लो हो जाएगा तो दैट विल बी कैश आउटफ्लो। और कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए आपके पास फर्नीचर था 5 लाख रुपए का, वो आपने बेच दिया, तो एसेट आपका कम हो जाएगा और आपके पास पैसा आएगा, तो दैट विल बी कैश इनफ्लो फ्रॉम योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनके बेसिस पर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो वो जो आप रूटीन के ऑपरेशंस कर रहे हैं बिजनेस में, टू अर्न प्रॉफिट, दोज एक्टिविटीज विल बी कंसिडर्ड एज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चाहे वो कैश इनफ्लो है, चाहे वो कैश आउटफ्लो है। की कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है बनाना, तो उसके एडवांटेजेस या यूजेस क्या होते हैं। When we prepare the cash flow statement, basically the main motive is to help the management. मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटरनल यूजर्स भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स उन लोगों की होती है। Now when we prepare cash flow statement, we can easily predict the future cash flows on the basis of what has happened in the past. आप प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, आप एस्टिमेट लगा रहे हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपकी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा, या कैश फ्लो का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, कहाँ से पैसा आपके पास आएगा, कहाँ आप पैसा यूज करेंगे, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी प्रिडिक्शन से आपको क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है या सॉल्वेंसी पोजीशन है, यू विल बी एबल टू नो इट। द कंपनी वुड बी एबल to generate future cash flows as per the requirement. Let's say if the company predicts that there will be a deficiency in future cash flows, आपको पैसे की जरूरत होगी मगर आपके पास उतना नहीं होगा, there would be a deficiency, तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट क्या करेगी? मैनेजमेंट would take the timely actions to arrange for the additional funds the company would be requiring in the future. कंपनी को पहले से ही पता है कि डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रिडिक्शन में है, तो और पैसे की ज़रूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगी, वो टाइमली एक्शन लेगी कि पैसा हम कहाँ कहाँ से और अरेंज कर सकते हैं ताकि डेफिशिएंसी ना हो। क्योंकि अगर डेफिशिएंसी होगी तो हो सकता है कि कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पर कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए। Just not to have the negative impact or deficiency of funds or cash in the organization, the company would be able to predict, and the company is predicting the future cash flows, the management would be taking the timely actions. उसी की तरह दूसरा रिवर्स केस भी हो सकता है कि कंपनी मैनेजमेंट को हो सकता है प्रिडिक्शन में ये आए कि देयर वुड बी सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि शायद उतनी ज़रूरत कंपनी को नहीं है आगे आने वाले टाइम पे। तो कंपनी के पास वो पैसा, जो एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा उसके पास होगा आने वाले टाइम में, वो आइडल रखा रहेगा। अब कंपनी क्या चाहेगी? कंपनी को तो मैक्सिमम लिक्विडिटी क्या अपनी इंक्रीज करनी होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी रखनी होती है। तो आइडल अगर कैश रखा है तो वो भी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो ज़्यादा बेटर नहीं होता है। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ये सोचेगी कि जो हमारे पास सरप्लस पैसा होगा जिसकी हमें शायद ज़रूरत नहीं होगी, तो वी कैन इन्वेस्ट इन एनी इन्वेस्टमेंट जिससे कि हमें एडिशनल रिटर्न मिल सकता है। तो कंपनी क्या करेगी? अगर कंपनी को लगता है कि सरप्लस फंड्स होंगे तो कंपनी उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए डिसाइड कर सकती है ताकि कंपनी एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर सके।
व्हेन वी टॉक ऑफ द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन, इसका क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के लिए होती है और सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म के लिए होती है. While with the help of preparation of cash flow statement, the management would be able to know the liquidity and solvency position. जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में डिस्कस किया, उससे क्या होगा, आपने प्रेडिक्शंस की कि आगे आने वाले टाइम में आपके पास कैश स्टेटस आपका क्या होगा. तो शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो लिक्विडिटी होगी कि आने वाले टाइम में आपके पास लिक्विडिटी पोजीशन आपकी कंपनी की कैसी होगी. और लॉन्ग टर्म में अगर सॉल्वेंसी की बात करूं तो क्या कंपनी के पास इतना पैसा होगा कि आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज हैं वो पे कर पाएंगी. व्हेन वी टॉक ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन मींस द कंपनी इज द कंपनी एबल टू मेक पेमेंट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो हैं, एंड इन केस यू हैव लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज would the company be able to pay its long term liabilities. वो आपकी लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन शो हो जाती है इससे. जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट फिगर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट की फिगर जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट्स बनाने के बाद. और कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो वो एक्चुअल कैश की मूवमेंट के बेसिस पर बनता है. स्पेशली मतलब जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर तो नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रही हूँ. तो जो डिफरेंस आता है वो एक बेसिस है हम दो फिगर्स में, नेट प्रॉफिट और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. एक एक्रूवल बेसिस पे बनी हुई है और एक एक्चुअल कैश बेसिस पे बनी हुई है. विद द हेल्प ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, द कंपनी, द मैनेजमेंट वुड बी एबल to know what the difference is between the net profit figure which is based on accrual basis जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से लिया और जो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट से नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिया है. आप उसको एनालाइज कर पाएंगे कि वो डिफरेंस क्यों है. उसके अलावा में कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उसमें अगर कोई इंक्रीज है अकाउंटिंग पीरियड में वो भी आपका असेस होता है, जो कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्टमेंट्स होती हैं. जब आप कैश फ्लोज की बात करते हैं, कैश फ्लोज का मैंने जैसे आपको बताया कि 3 तरीके की एक्टिविटीज हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैश फ्लो अगर कोई भी हो रहा है तो उसको इन तीनों एक्टिविटीज़ में कैटेगराइज कैसे किया जाता है और कहाँ कौन सा कैश फ्लो एडजस्ट होके रिकॉर्ड होता है, कहाँ एंट्री होती है. कंपनी बेसिकली क्या कर सकती है कि कंपनी ने जब 3 तरीके की एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज कर रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो मैनेजमेंट के लिए ये ईजी हो जाता है ये चेक करना कि सारी एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटी स्ट्रॉन्गर है, कौन सी एक्टिविटी वीक पार्ट पे है. और अगर आपको ये मालूम है तो आप मैनेजमेंट कैन टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन टू इम्प्रूव द कैश फ्लो फ्रॉम एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी. ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं मैनेजेरियल एफिशिएंसी को जज करने में कि आपकी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है एक्शंस लेने में, प्रिकॉशंस लेने में और डिसीजंस लेने में. नाउ व्हेन यू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड फॉर्मेट, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी इजी टू हैव इंटर एज वेल एज इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन. आप चाहें तो अपनी कंपनी के अलग अलग टाइम पीरियड के कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं. आप चाहें तो सेम इंडस्ट्री में किसी और बिजनेस से अपनी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को जज करके डिसीजंस ले सकते हैं. तो फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, लिमिटेशंस भी हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की. सबसे मेजर लिमिटेशन क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश का पार्ट एक एंटरप्राइज के जो कैश ट्रांजेक्शन है, कैश फ्लोज हैं, सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर करती है. हेंस बेसिकली इट इज इग्नोरिंग सम ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजेक्शंस. कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कैश फ्लो नहीं होता है, ना पैसा आता है ना ही पैसा जाता है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा वाइटल रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. लेकिन वो सारे के सारे नॉन कैश ट्रांजेक्शंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल इग्नोर किया जाता है. इसके अलावा जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं
तो अगर कंपनी चाहे, कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट है, कंपनी अगर चाहे तो कंपनी कैश बैलेंस को बहुत आसानी से मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे अगर कंपनी को कोई परचेज करने हैं, उसके बदले में कैश देना है, लेकिन कंपनी अपना कैश बैलेंस कम करके दिखाना नहीं चाहती व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, तो कंपनी कैन जस्ट इजीली पोस्टपोन द पेमेंट। तो पेमेंट अगर पोस्टपोन कर दोगे तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एंट्री आएगी ही नहीं। thereby you have easily manipulated or influenced your cash balance if required। उसके अलावा जो हम फिक्स एसेट्स दिखाते हैं, फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, तो व्हेन वी परचेज एनी फिक्स एसेट इट इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो इनकम है और जो उसके अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन है वो हम फ्यूचर में दिखाते हैं। तो जो नेट इनकम फिगर है और जो कैश फ्लो आ रहा है उसमें डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट कैश फ्लो ज़रूर होते हैं, लेकिन वो इनकम स्टेटमेंट का या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाता है। समटाइम्स पीपल से कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सारी कैश ट्रांजेक्शन ही तो दिखा रहे हैं, सारी कैश की इनफ्लो दिखा रहे हैं और कैश आउटफ्लो दिखा रहे हैं, तो इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू कैश बुक, बट नो, देयर इज अ डिफरेंस इन कैश बुक एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। When we prepare cash book, it is basically a subsidiary book, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है। कैश बुक में सारी कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स है और कैश फ्लो में कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज आते हैं। कैश बुक बेसिकली जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वो पूरे साल प्रिपेयर करते हैं, थ्रू आउट द ईयर वी प्रिपेयर द कैश ट्रांजेक्शंस, और जैसे जैसे कोई ट्रांजेक्शन होती है वो वहाँ पर एंटर हो जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाते हैं, अलॉन्ग विद व्हेन वी प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, तो उसमें लास्ट में काम होता है। कैश बुक में कैश बुक के जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के हैं, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, is generally it is being used by the management of the organization। कैश बुक में सेपरेट कोई भी क्लासिफिकेशन हम नहीं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर आर 3 classifications: cash flow from investing, operating and financing activities. This type of classification is mandatory to be done in cash flow statement। लास्ट जो डिफरेंस है वो क्या है, कैश बुक में हम सारी ट्रांजेक्शन्स जो कैश से रिलेटेड दिखा रहे हैं, कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट, उसमें हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हम कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात करते हैं तो उसमें कैश इन हैंड भी होता है, कैश एट बैंक या डिमांड डिपॉजिट्स भी होते हैं, और उसके अलावा में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। नाउ कमिंग टू द डिफरेंस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी 3 तरीके की एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को समराइज करके उसका इफेक्ट दिखाया जाता है पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड का, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को दिखाता है पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड में। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल कैश के बेसिस पर आप रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज, अक्रूवल बेसिस का जो भी डेटा आपको मिलता है that has to be converted into cash basis। When you prepare the fund flow statement, it is based on the accrual basis। Cash flow statement in general is basically used to understand the short term phenomena which affects the liquidity of the business। जो मैंने पहले भी बताया यूजेस में, जनरली उसको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी टाइम के लिए ही उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और फंड फ्लो जो है that is more relevant and useful in assessing the long-term financial strategies of any business entity। The cash flow statement reconciles the opening balance of cash with the closing balance of cash by proceedings through cash flow from all these 3 types of activities we have discussed। And fund flow statement basically tallies the different funds generated from different sources and to different uses to which the fund has been put up by the owner। Now this is the classification we have discussed। Now there are certain items which has been mentioned by the mentioned in the accounting standard। जो कैटेगरी आपने की है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आई एम नॉट discussing these
इंडिविजुअली आई एम जस्ट स्किपिंग इट, वो हम क्वेश्चन में ही डायरेक्टली करेंगे। कुछ स्पेशल आइटम्स हैं ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का, अगर मैं फॉर्मेट शेयर okay, I'm just coming to the format of cash flow statement. Now cash flow statement जब आप बनाएंगे तो उसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो आपके लिए होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का नाम लिखिए फॉर द ईयर एंडेड। उसमें आप सबसे पहले स्टार्ट जो करते हैं, सबसे पहले आपकी जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले आप लिखते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और लास्ट में आप मेंशन करते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो रूटीन ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं। कोई भी कैश ट्रांजेक्शन ईदर इट्स अ कैश इनफ्लो और इट इज अ कैश आउटफ्लो जो कि रूटीन ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स, वो सारी एंट्रीज आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी। कोई भी कैश इनफ्लो, कोई भी कैश आउटफ्लो अगर आपका फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो वो आपके लिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। और अगर आपका कोई भी चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर में है, शेयर कैपिटल में, डिबेंचर्स में अगर कोई भी चेंज है, whether it's a cash inflow or it's an outflow, it would be considered as cash flow from financing activities. Now as you all can see, the first part now you all can see the particulars amount and amount के मैंने दो कॉलम इसमें बनाए हुए हैं। पहला जो अमाउंट का कॉलम है वो आपकी सिर्फ डिटेल्स शो करेंगे आप उसमें, और जो नेट अमाउंट, जो नेट बैलेंस आएगा तीनों एक्टिविटीज़ का, वो आप फाइनल अमाउंट के कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले एज यू ऑल कैन सी इन ऑन दी योर स्क्रीन, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स जो मैंने स्टार्ट की है वो कहाँ से शुरू की है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब जो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जो रूटीन का बिजनेस ऑपरेशन है उसमें कोई भी कैश ट्रांजेक्शन अगर हुई है तो वो आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाती है। ये जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो सबसे पहले आप आइटम लिखेंगे वो आप शुरू करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब जैसे जैसे एक एक आइटम्स आएंगे आई विल डिस्कस दोज आइटम्स विद यू। जो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट की या नेट लॉस की फिगर, नेट लॉस यानी नेट लॉस या नेट प्रॉफिट की फिगर जो होती है, हम वहाँ से अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी शुरू करते हैं। व्हेन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट्स जब हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं, इनकम भी होते हैं। उनमें से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिसमें एक्चुअली में कैश फ्लो होता है। एक्सपेंसेस एक्चुअली में ऐसे हैं जहां आपने पैसा दिया है, और कुछ इनकम ऐसी होती हैं जहां से एक्चुअली में पैसा आता है। मगर कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट तो होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स का वाइटल रोल भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। आपने कैश ट्रांजेक्शन नहीं की होती, फिर भी वो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो करते हैं। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन लेते हैं, तो एक तो बिफोर टैक्सेशन है, तो इसका मतलब जब हम पीएनएल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें टैक्स भी दिखा देते हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट भी यहाँ आएगी। उसके अलावा में जितनी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी एडजस्टमेंट भी हम वापस से नेट प्रॉफिट की फिगर में करते हैं, जिससे कि हमें नेट प्रॉफिट की फिगर मिलेगी जिसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व नहीं हो। जैसे डेप्रिसिएशन होता है, आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 5 लाख रुपए की, कोई और परचेज या सेल नहीं है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग द रैंडम फिगर्स, 10% आपने उस पर डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाना है।
5 लाख के मशीन पे 10% का जो डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे वो आपका हो जाएगा 5 लाख की मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन इफ यू चार्ज इट विल बी 50,000 रुपीज। वो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे दिखाया होगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपये। क्योंकि वो डेप्रिसिएशन के टाइम पर आपने एक्सपेंसेस को दिखा दिए पीएल में, तो प्रॉफिट की फिगर पे उसका डिफरेंस भी आ जाएगा। जितना भी अमाउंट डेप्रिसिएशन का आप फिक्स एसेट्स पे चार्ज करते हैं, प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट कितना होगा? हायर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एनी एसेट, लेसर वुड बी योर प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट की फिगर पे आपका क्या असर आ रहा है? प्रॉफिट उतना ही आपका कम हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे? अब मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था? नेट प्रॉफिट की फिगर से, जो कि बिफोर टैक्सेशन थी। यहाँ पर मैंने क्या किया? डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स्ड एसेट पे जो लगाया है वो वापस से एड बैक कर दिया है। ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो इट इज सिग्निफिकेंट बट नो कैश इन्वॉल्वमेंट इज देयर, कैश पेमेंट इसमें नहीं होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के टाइम पर नेट प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने जब डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर, तो इसका मतलब मैंने उतने ही अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उतने ही अमाउंट से प्रॉफिट की फिगर कम कर दी थी, जो कि एक्चुअली थी नहीं इन द टर्म्स ऑफ कैश। अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट जो मैंने लिया है उसमें उस डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करके शो करना पड़ेगा। सिमिलरली व्हेन वी टॉक ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। गुडविल के लिए जो आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, गुडविल कभी भी पेमेंट नहीं होती अनटिल अनलेस यू आर परचेजिंग एनी बिजनेस। तो गुडविल के पैसे आप पे जरूर करते हैं गुडविल के नाम के, बट अदरवाइज आप परचेज नहीं करते हैं, आप उसकी वैल्यूएशन करते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस और उसको आप अपने अकाउंट्स में शो कर देते हैं, क्योंकि उससे आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में फायदा होता है। जितनी रेपुटेशन ज़्यादा होगी उतनी ही इसका अमाउंट आप ज़्यादा दिखा सकते हो। बट ओवर द डिफरेंट पीरियड ऑफ ईयर्स कंपनी क्या करती है? कभी कभी उसको राइट ऑफ करना शुरू कर देती है। तो वो आप क्या कर रहे हैं? इनकम स्टेट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप उसको एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, लॉसेस के फॉर्म में आप उसको डेबिट साइड पे दिखा देते हैं और उससे प्रॉफिट की फिगर आपकी कम हो जाती है। तो जो आपने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में गुडविल के अमाउंट को राइट ऑफ किया है, ऐसे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का भी है। तो जितने भी गुडविल हैं, आपके पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, अगर आपने उनको राइट ऑफ किया है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के टाइम पर उनको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में वापस से ऐड किया जाता है। जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं, एक एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स। अब ये क्या है? डिबेंचर होल्डर्स कौन है? जिन्होंने आपके फॉर्म डिबेंचर्स के फॉर्म में आपके उसमें पैसा लगाया हुआ है, तो वो बेसिकली आपका बिजनेस को फाइनेंस किया हुआ है। जब भी डिबेंचर होल्डर्स आपकी कंपनी में होंगे, तो वो डिबेंचर होल्डर्स को आप रिटर्न में क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो आपके लिए, कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर है। जो इंटरेस्ट आपने डिबेंचर होल्डर्स को दिया है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाते हैं हम लोग, जिससे कि प्रॉफिट की फिगर कम हो जाती है। डिबेंचर होल्डर्स को एक्चुअली पैसा भी जाता है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि भी डिबेंचर होल्डर्स को तो हम एक्चुअली में पैसा दे रहे हैं, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं है। ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करके दिखाया हुआ है। इसका लॉजिक क्या है? As we have discussed earlier, all cash flows are to be segregated or classified into three categories: operating, financing और investing। तीनों ही कैटेगरीज में कोई भी कैश इनफ्लो एक जगह जाएगा। तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स क्या है? आप कैपिटल का पार्ट है, आपके बिजनेस का पार्ट है, और उनको आप इंटरेस्ट दे रहे हो। तो एनी पेमेंट received from debenture holders or any payment given to debenture holders will not be the part of cash flow from operating activities, rather it would be a part for
पार्ट ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिखाए हुए हैं डिबेंचर होल्डर्स के टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, वो यहाँ पे रिवर्स करके मैं वापस ऐड बैक कर रही हूँ। और ये सेम ट्रांजेक्शन जो मैंने यहाँ पर ऐड की है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर में से इसको हटाऊंगी, और ये बाय डिफॉल्ट फिर कहाँ जानी चाहिए? इट विल बी शोन अंडर द कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। Similarly, next item is loss on सेल ऑफ एसेट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब मान लीजिए आपने कोई एसेट्स परचेज किए हुए हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, तो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो उस पर रिटर्न आपको मिलेगा। आपने अगर कोई एसेट परचेज किया हुआ है तो एसेट किस लिए परचेज किया था? पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस को रन करने के लिए लॉन्ग टर्म में। तो अगर आपने कोई भी एसेट परचेज किया होगा तो कैश फ्लो होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। और अगर आपने कोई भी एसेट को बेचा है तो देयर विल बी कैश इनफ्लो। तो वो जो कैश आउटफ्लो है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट और कैश इनफ्लो है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, वो कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि आपने रूटीन ऑपरेशंस को करने के लिए कुछ पैसा अपना बिजनेस का फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ था। तो वो कैश इनफ्लोज जो होंगे या आउटफ्लोज होंगे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। तो उनसे रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी और ट्रांजेक्शन होगी अपार्ट फ्रॉम परचेज एंड सेल, वो भी कहाँ जानी चाहिए लॉजिकली? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो अगर हमने कोई फिक्स एसेट बेचा है तो उस पर वी मे हैव द लॉस एंड वी मे हैव द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो अगर कोई भी लॉस या प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ एसेट इन, तो वो हम कहाँ दिखा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। अगर लॉस है तो हमने डेबिट साइड पे दिखाया होता है, और अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट होता है तो उसको हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसका मतलब उस लॉस या उस प्रॉफिट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमने दिखा रखा है नेट प्रॉफिट की फिगर में, जो कि एक पार्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो हमें ये एंट्री भी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी प्रॉफिट है या लॉस है किसी भी एसेट को बेचने के बाद, उसकी भी मुझे ट्रांजैक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लॉस डेबिट साइड पे गया था, मतलब मैंने प्रॉफिट की फिगर कम कर दी थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट की फिगर बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया? ऐड कर दिया लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या कोई भी इन्वेस्टमेंट। अगर मेरा सेल मैंने करा एसेट को और उस पर प्रॉफिट हुआ तो मैंने क्या किया था? प्रॉफिट की फिगर मैंने उतनी ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बढ़ाकर दिखाई, इनफैक्ट इंक्रीज का आ गया उतने अमाउंट से, जबकि एक्चुअली मुझे उसको हटाना था। तो क्या करूँगी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अगर कोई है तो मैं डिडक्ट करूँगी। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट फिक्स एसेट अगर है, इन्वेस्टमेंट है और उसका प्रॉफिट है, तो नेट कैश जो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन ले रहे हैं उसमें आप इसको लेस करके दिखाएंगे। सिमिलरली व्हेन वी टॉक ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, कहीं पैसा आपने बिजनेस का प्रपोजल में लगाया हुआ है और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपके लिए इनकम होती है। वो आपने जब इनकम रिसीव की तो कैश इनफ्लो हुआ। लेकिन वो कैश इनफ्लो, अब मैं बात करती हूँ अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो वो मैंने कहाँ शो की? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो मैंने प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखा दिया। एक्चुअली में जो मुझे इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे, वो कहाँ जाना चाहिए था? अगर मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। तो इंटरेस्ट इनकम यू हैव रिसीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ कमिंग इन अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैज टू बी
शोज का प्रॉफिट पे से वापस इम्पैक्ट खत्म करने के लिए आई जस्ट डिडक्ट दिस फिगर फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। ऐसे ही अगर डिविडेंड है तो वो भी मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा। अब एक चीज़ होती है डिविडेंड, डिविडेंड आप शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, तो इन जनरल अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ, जो आपने डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे किया है पूरे साल में, वो आपका कहाँ जाना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी में जाना चाहिए? दैट हैज़ टू बी शोन अंडर कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज है, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी भी आइटम में कोई भी कैश फ्लो है, इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी है, तो वो आपका कहाँ जाता है? दैट इज टू बी कंसिडर्ड और रिकॉर्डेड अंडर कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन जब आप डिविडेंड पे करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो आप कहाँ दिखाते हैं? पीएलएन अकाउंट में। अब इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, वो डिटेल में मैं आपसे क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करूंगी व्हेन विल डू क्वेश्चन। एक होता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में क्वेश्चन में यू मे हैव द प्रपोज डिविडेंड फॉर द लास्ट ईयर एंड प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। मान लीजिए मेरे पास दो अकाउंट्स हैं, 2016 के और 2017 के। 2016 में जो प्रपोज डिविडेंड आपने बैलेंस शीट में दिखाया हुआ था वो दिखाया हुआ था 50,000 का, और 2017 में जो आपने प्रपोज डिविडेंड दिखाया हुआ है वो दिखाया हुआ है 60,000 रुपीज़ का। अब दोनों का मतलब क्या है? In 2016, you proposed a dividend of 50,000 rupees, and during 2017, you proposed a dividend of 60,000 rupees. एक बार 50,000 था और एक बार 60,000 था। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट 2017 की बनाते हैं तो हम प्रपोज डिविडेंड की एंट्रीज एडजस्टमेंट्स कहाँ कैसे करते हैं? दो फिगर्स हैं, एक पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है और एक इस साल का प्रपोज डिविडेंड है। जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जिसके बेसिस पर हम अकाउंट्स बनाते हैं, उसके हिसाब से जो 60,000 मैंने इस साल प्रपोज किया डिविडेंड, वो मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसका मतलब जो 2017 में मैंने डिविडेंड प्रपोज किया 60,000 का, वो मैंने कहाँ शो किया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मगर एक्चुअली में हम अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है और कोई और एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो लास्ट ईयर कंपनी ने डिविडेंड को प्रपोज किया था, यानी 50,000 मेरे एग्जाम्पल में जो कंपनी ने लास्ट ईयर प्रपोज किया था, वो कंपनी इस साल पे करेगी। तो आपके पास दो एंट्रीज हो गई, एक जो लास्ट ईयर प्रपोज किया था 50,000, वो कंपनी ने करंट ईयर में पे किया, और जो करंट ईयर में प्रपोज किया 60,000, वो कंपनी कब करेगी? नेक्स्ट ईयर पे करेगी। तो एक एंट्री जो करंट ईयर में प्रपोज करते हैं वो कंपनी कहाँ शो करती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। इसका मतलब उसका 60,000 जो मैंने आज प्रपोज किया लेकिन मैंने दिया नहीं है अभी, तो वो मेरे लिए क्या हो गई? नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गई। अब उसके लिए मैंने क्या करना था? वो मैंने उसका इम्पैक्ट दिखाया था प्रॉफिट की फिगर पे, प्रॉफिट मैंने कम करके दिखाया था। तो व्हाट आई विल डू इज, ये जो प्रपोज डिविडेंड है करंट ईयर का, जो इस साल मैंने डिविडेंड को प्रपोज किया है मगर मैंने दिया नहीं है, दो इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें मैंने क्योंकि दिखाया था तो प्रॉफिट मैंने कम करके दिखा दिया था उतने ही अमाउंट से, तो वो मैं इंक्रीज कर दूंगी, ऐड बैक कर दूंगी। तो प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर has to be added back in the net profit before taxation। और जो दूसरा अमाउंट था जो मैंने इस साल दिया है, एक्चुअली में जो लास्ट ईयर का मैंने जो प्रपोज किया था 50,000, वो मैंने इस साल दिया है, तो वो कहाँ जाएगा? दैट विल बी द कैश आउटफ्लो। एक्चुअली पैसा दिया है तो वो कहाँ चला जाएगा? वो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये कंडीशंस मैंने से तब ये एग्जांपल से तब अप्लाई है जब प्रपोज डिविडेंड की दो फिगर्स हैं, एक प्रपोज डिविडेंड था लास्ट ईयर का और एक प्रपोज डिविडेंड था करंट ईयर का। बाकी आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस में या एंट्रीज आएंगी, आई विल जस्ट डिस्कस दोस एंट्रीज विद यू। नाउ व्हेन यू मेक ऑल दी नॉन कैश ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट्स, और जो भी आपके एंट्रीज एडजस्टमेंट्स हैं जो बाकी आपके नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में जाएंगी, उनकी एडजस्टमेंट्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में करने के बाद आपके पास फिगर आती है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपके पास कैश की जनरेशन आ गई कि आपने कैश कितना जनरेट आपने किया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर में ही नेट प्रॉफिट से, जिसमें कि आपने नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को वापस से रिवर्स कर दिया। अब इसमें आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस की भी बात करनी पड़ेगी। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस के हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एडजस्टमेंट्स क्यों करते हैं? यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है। कैपिटल वो होती है जो बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है काम करने के लिए। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो मुझे रूटीन ऑपरेशंस करने के लिए बिजनेस पैसा चाहिए, जो रूटीन में फ्लो कर रहा है। तो रूटीन ऑपरेशंस करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए जितने भी पैसे की ज़रूरत होती है वो वर्किंग कैपिटल में मानी जाती है। उसमें आपके क्या क्या चीज़ आती हैं? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ आती हैं, जिनके बेसिस पर आप रूटीन परफॉर्मेंसेस फंक्शनिंग कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन। Now, when you have the cash generated from operations before working capital changes, अब आप इसमें current assets और current liabilities के changes को भी adjust करेंगे। In general, अब आप ये बताइए current assets में क्या है? स्टॉक आएगा, इन्वेंट्री आएगी, डेटर्स होंगे, बिल्स पेबल होंगे, अगर आपके लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं। अब मान लीजिए डेटर्स हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे आपको पैसा लेना है। आपने कोई सेल की, क्रेडिट सेल्स की आपने, मान लीजिए 1 लाख रुपए की, तो वो पैसा आपको बाद में मिलेगा। वो 1 लाख रुपए जब आपको बाद में मिलेगा तो वो आपने बैलेंस शीट में डेटर्स के फॉर्म में शो कर दिया। नाउ इफ आई अज्यूम कि जो लास्ट ईयर के डेटर्स थे वो 1 लाख थे और जो करंट ईयर के डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है वो 2 लाख रुपए का है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट आई एम जस्ट डिस्कसिंग। 1 लाख रुपए के, इसका मतलब पहले थे और 2 लाख के हैं, तो 1 लाख रुपए का टोटल में इंक्रीज डेटर्स में हो गया है। तो अब इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट आएगा? मैं अगर ये कहती हूँ कि पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड में डेटर्स आपके 1 लाख से बढ़ गए हैं, तो इसका क्या मतलब था? आपके पास से पैसा कम हो गया, वरना उतना पैसा आपके पास होता है नहीं। तो आप क्या करेंगे? एनी इंक्रीज इन करंट एसेट that will be decreasing your cash generation from ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपने अगर कोई भी करंट एसेट में इंक्रीज किया है तो कैश आपका कम हो जाता है, अदरवाइज उतना होता। आपने स्टॉक है, स्टॉक आपने परचेज कर लिया, मोमेंट यू परचेज स्टॉक और इन्वेंट्री आगे बेचने के लिए, तो पैसा आपका ब्लॉक हो गया, तो कैश आउटफ्लो हो गया, पैसा चला गया, तो आप क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल हैं, बिल्स रिसीवेबल अगर बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब उतना पैसा आपका ब्लॉक हो गया है, आपके पास पैसा नहीं आया है, तो दैट विल इंक्रीज द कैश फ्लो। ठीक है, तो वो आप डिक्रीज कर देंगे। तो एनी बेसिकली आप यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में चेंजेस करके दिखाएंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के। तो इन जनरल व्हेन वी टॉक ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, एनी इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीजेस द वर्किंग कैपिटल। आपकी वर्किंग कैपिटल उस पर इम्पैक्ट क्या आएगा? कोई भी करंट एसेट में अगर इंक्रीज होता है तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल को कम कर देता है, उतना पैसा आपका कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, आपके पास उतना पैसा है नहीं जो कि एक्चुअली होता आपके पास अगर आपको पेमेंट मिल गई होती। तो एनी इंक्रीज इन करंट एसेट्स वुड डिक्रीज द वर्किंग कैपिटल। Similarly, any decrease in current assets would increase. अगर डेटर्स मेरे कम हो गए तो इसका मतलब कम कब होंगे? या तो वो बेड डेट्स बन गए। मैं बेड डेट्स की असम्पशन ले नहीं रही, अभी मैं अज्यूम करूँ कि डेटर्स में आपका डिक्रीज जो भी था, नेट डिक्रीज जो था, 1 लाख के पहले डेटर्स थे, 50,000 के डेटर्स करंट है, 50,000 इसका मतलब वो कम हो गए, तो वो 50,000 अगर वो पैसा आपको मिला है तो वो डिक्रीज जो है डेटर्स में वो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। तो any increase in current asset would decrease the working capital. Any decrease in current assets, कोई भी कमी current assets में आपके working capital को बढ़ा देती है। Liabilities की अगर बात करेंगे तो any increase in current liabilities would, any increase क्या करेगी? अगर इंक्रीज लाइबिलिटीज में मान लीजिए क्रेडिटर्स हैं तो क्या है? अगर क्रेडिटर्स कम हो गए तो इसका मतलब मेरे पास पैसा आया होगा, तो एनी इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज वुड इंक्रीज
the working capital or any decrease in current liabilities would decrease the working capital. तो जितने भी current assets और current liabilities हैं उनमें जो भी कोई increase या decrease होगा that would impact the working capital. Accordingly you have to make the adjustments. इन सब के बाद जब आप adjustments कर देंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की आपने जब एडजस्टमेंट्स की बात कर दी इंक्रीज या डिक्रीज आपने शो कर दिया तो जो फिगर आपके पास आएगी दैट वुड बी द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. इसमें जो आपने एक्चुअल इनकम टैक्स पे किया होगा वो आप माइनस करेंगे तो आपको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स मिल जाएगा जो कि आपकी फिगर होगी कैश नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जितना भी पैसा आपके पास जनरेट हुआ है या यूज हुआ है. जब हम इन तीनों फिगर्स की बात करते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, आपके पास जो भी फिगर आएगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है वो नेगेटिव भी हो सकती है. या तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जैसे मैंने हाईलाइट करके दिखाया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और जो आपके पास अल्टीमेट फिगर आएगी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव इन जनरल जैसे हम लिखते हैं ब्रैकेट में तो दैट विल डिपिक्ट अ नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इसका क्या मतलब है अगर पॉजिटिव फिगर आएगी तो क्या है इट इज़ नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. और अगर वो फिगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब वो यूज़ किया होगा पैसा चला गया है. नेट इम्पैक्ट तो नेगेटिव है इसका मतलब पैसा ओवरऑल में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैटेगरी में पैसा आपने ज़्यादा यूज़ कर दिया नेगेटिव होने की वजह से. तो आप वहाँ क्या लिख सकते हैं नेट कैश फ्रॉम नेट कैश यूज फ्रॉम और नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन केस यू हैव दी नेगेटिव फिगर्स. इसके बाद हम दूसरी कैलकुलेशंस करते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. एज वी हैव डिस्कस्ड कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है आपने पैसा अपने जो बिजनेस का जो पैसा है वो कहीं लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं या आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं. अगर मैं कोई भी फिक्स्ड एसेट को परचेज करूँगी तो इसका मतलब पैसा मेरे पास से चला जाएगा. पैसा अगर चला जाता है एज यू ऑल कैन सी दिस इन इफ आई परचेज एनी फिक्स्ड एसेट तो कैश आउटफ्लो होगा. तो ये फिगर मेरी इसमें से डिडक्ट हो जाएगी, पैसा मेरे पास से कम हो जाएगा. तो द फिगर जो मैं इसमें डिटेल में लिखूंगी वो माइनस में चली जाएगी. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इट विल बी ए कैश आउटफ्लो तो वो माइनस हो जाएगी. प्रोसीड मान लीजिए मैंने कोई फिक्स एसेट को बेचा है. अगर मैं बेच देती हूँ कोई भी फिक्स एसेट को या इन्वेस्टमेंट को तो क्या होगा आई विल बी गेटिंग द प्रोसीड्स, आई विल बी गेटिंग द कैश, तो देयर वुड बी अ कैश इनफ्लो. तो ये दोनों फिगर्स मेरी ऐड हो जाएंगी. व्हेन वी टॉक ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं हमें या तो इंटरेस्ट मिलेगा या हमें डिविडेंड मिलेगा. अब अगर हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मिलता है तो वो कहाँ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में. तो ये हमने कहाँ पे शो करना है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है जहाँ हमने कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशंस की थी वहाँ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड को हमने हटाया था क्योंकि वो प्रॉफिट में तो दिखाया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखाते हैं हम इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेमेंट, लेकिन वो एक्चुअली में जाएगा कहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, या तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा या वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा जैसा भी केस होगा. अब मान लीजिए मैं डिविडेंड की बात कर रही हूँ या इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ तो वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अगर है तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में चला जाएगा. जब आप फिक्स्ड एसेट्स के कैश इनफ्लोज या कैश आउटफ्लोज की एडजस्टमेंट्स कर देंगे ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स वो आपकी जो फिगर आएगी दैट विल बी द नेट कैश जनरेटेड और नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आती है. जो थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट क्या आता है इसका कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. अब जो कोई एक्टिविटी ऑपरेटिंग नहीं है जो कोई इन्वेस्टिंग नहीं है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है. या आप रिवर्स समझना चाहें तो जो कैपिटल की फॉर्म में शेयर्स की कैपिटल
डिबेंचर्स की फॉर्म में जो भी पैसा आपका बिजनेस में फाइनेंस किया हुआ है, लगाया हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्म में कोई भी चेंज अगर होता है, कोई भी कैश फ्लो होता है, वो आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसे अगर आपने शेयर्स को इशू किया, अब जब आप शेयर्स इशू करेंगे तो आपको पैसा बिजनेस में आएगा, तो दैट विल बी अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समटाइम्स यू मे इशू शेयर्स एट प्रीमियम। अब 100 रुपये का शेयर है, 102 रुपये पे आपने उसको इशू किया है, इसका मतलब 100 रुपये तो फेस वैल्यू थी और 2 रुपये प्रीमियम के थे, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम होता है। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स will include the amount of premium if any, that will be added in the cash flow from financing activity। ऐसे ही लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए तो वो सारा कैश इनफ्लो होता है, वो आपका यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो आपके थे प्रेफरेंस शेयर्स, उनको रिडीम कर दिया। अगर आप रिडम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स की या डिबेंचर्स की, इसका मतलब उतना पैसा आपके बिजनेस से वापस चला गया है, आपने पेमेंट कर दी है, दैट वुड बी अ कैश आउटफ्लो। तो दीज टू ट्रांजेक्शंस इफ दीज आर देयर, तो ये आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे और लेस करके दिखाएंगे। अब आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ था, आपने लिया है अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म लोन, तो इसका मतलब पैसा आया था तो वो आपने ऐड किया था, लेकिन अगर आप उसकी वापस पेमेंट कर रहे हैं, आप लोन पे कर रहे हैं, तो वो कैश आउटफ्लो होगा, तो वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डिडक्ट होकर आ जाएगा। सिमिलरली व्हेन यू हैव द शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप शेयर होल्डर्स जो होंगे आप उनको डिविडेंड पे करेंगे, स्पेशली प्रेफरेंस शेयर्स को तो देते ही हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी आप डिविडेंड दे सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स जितने हैं उनको आप रिटर्न जो दे रहे हैं वो इंटरेस्ट की फॉर्म में दे रहे हैं। तो जो भी शेयर होल्डर्स को आपने पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और जो आपने डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, दैट वुड बी इंक्लूडेड इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड नॉट इन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। As I have already discussed in the first section, जहाँ हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किया था, वहाँ पर इंटरेस्ट की जो एडजस्टमेंट थी और डिविडेंड की एडजस्टमेंट थी वो मैंने ऐड कर दिखाई थी। वो किस लिए की थी? जो मैं डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दे रही हूँ इंटरेस्ट का, वो मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ दिखाया होगा? डेबिट साइड पे किया होगा, तो प्रॉफिट को उसका इम्पैक्ट दिखाया। तो जो मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट की फिगर ली थी, उसमें मैंने डिविडेंड पेड टू डिबेंचर होल्डर्स ऐड किया और उसको मैंने कहाँ शो किया? कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। कंपनी को रूटीन में कंपनी का काम नहीं है डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने का, वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है और वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर में आएगा। तो डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड अगर है, इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स अगर है, जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया हुआ है, वो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाया था उसमें ऐड करेंगे और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में उसको माइनस करेंगे। इससे जो आपको फिगर मिलेगी दैट विल बी नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आपके पास तीन टर्म्स आ गई, तीन फिगर्स आ जाएंगी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, ईदर इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वो आपके कौन कौन से फिगर्स थी? नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, द सेकंड वाज नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड, आई एम यूजिंग बोथ टर्म्स, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड द थर्ड कैलकुलेशन जो आपने की थी, फिगर जो आपके पास आई है वो किसकी आई है? नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये जो तीनों फिगर्स आपके पास आई हैं, अगर मैं इन तीनों का सम टोटल कर देती हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो भी इन तीनों का सम टोटल आएगा वो आपको टोटल नेट फिगर बता देगा, नेट फिगर इंक्रीज की है या डिक्रीज की है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में। टोटल में नेट में कैश इनफ्लो हुआ था, पैसा आपके पास आया था, प्लस में है, या टोटल में कैश आउटफ्लो हुआ है। इसमें आप
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है, वो फिगर ऐड करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड आप सबसे पहले लिखें, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। यू जस्ट कैन हैव अ लुक ऑन बैलेंस शीट, तो आपको लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की बैलेंस शीट से ये दोनों फिगर्स आपको मिल जाती हैं। तो यू कैन ईजिली राइट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। दोनों अगर आप ये लिखेंगे तो जो आपका आंसर बेसिकली आपने कैलकुलेट किया, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये जो फिगर आपने कैलकुलेट की है फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये आंसर आपको एडवांस में ही पता चल जाता है कि ये एक्चुअली क्या होना चाहिए। तो बेसिकली आप आंसर टैली कर सकते हैं अगर आप ये दो फिगर्स, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैलेंस शीट से देखकर यहाँ लिख देते हैं, तो आपके पास नेट इंक्रीज या डिक्रीज आपको पहले से ही पता है बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्रीज करेंगे और आपकी तीन फिगर्स आएंगी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो आपका आंसर टैली हो जाएगा। हो सकता है आप कोई एंट्री छोड़ दे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कहीं ना कहीं एरर है एंड यू कैन जस्ट लुक इट एंड मेक द करेक्शन। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। I hope the format is clear to everyone. Now, I would just again I'll just come to some of your 2-3 एडजस्टमेंट स्पेशल आइटम्स जो मैंने कुछ आपके साथ डिस्कस कर भी ली है। एक है इंटरेस्ट और डिविडेंड की। इंटरेस्ट और डिविडेंड की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको जैसे फॉर्मेट में समझा दिया है कि ईदर इट कैन बी द पेमेंट, इट कैन बी द रिसीट ऑफ डिविडेंड। जब भी आपको कोई एडजस्टमेंट इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड या रिसीट की होगी तो आपको उसको क्लासिफाई करना है कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। जब आपके पास दोनों में से कोई भी आइटम है, कोई भी ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट की या डिविडेंड की, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेस है, जिसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रही है, उसका नेचर क्या है, वेदर इट इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर और इट इज ऑफ अनदर एंटरप्राइज। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन, ये पता होना कि बिजनेस एंटरप्राइज जिसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रही है उसका नेचर क्या है, उससे इन दोनों ट्रांजेक्शन्स की एडजस्टमेंट्स पे फर्क आ जाता है। नाउ इफ आई से कि जो बिजनेस है, जो एंटरप्राइज है, वो फाइनेंशियल नेचर की है, कोई बैंक NBFC है, कोई आपका स्मॉल फाइनेंसिंग कंपनी है जो पैसे का लेन देन का, जिनका रूटीन का काम पैसे के लेन देन का है, तो अगर मैं फाइनेंशियल एंटरप्राइज कह रही हूँ तो इसका क्या मतलब है, उनका पैसों का लेन देन का काम है। तो इन केस द नेचर ऑफ द बिजनेस इज फाइनेंस, तो फाइनेंशियल अगर एंटरप्राइज है तब क्या होगा, अगर कोई भी कैश फ्लो है, नो कैश फ्लो इज कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, कोई भी कैश फ्लो है जो इंटरेस्ट पे से या इंटरेस्ट रिसीव से मिलेगा या आप पे करोगे, ईदर देयर इज इंटरेस्ट पेड और यू हैव रिसीव द इंटरेस्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको सिंपल में आप समझेंगे तो इसका क्या मतलब है, कोई भी एक कंपनी जिसका रूटीन का काम फाइनेंस का ही है, फाइनेंस से ही रिलेटेड उसके सारे काम है, पैसे के लेन देन का ही काम है, पैसा ब्याज पे देता है, पैसा ब्याज पे ले लेता है, उसका रूटीन का ही काम है, और उसमें अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है या वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो क्या हो गया, क्योंकि उसका काम रूटीन का ही वो ही काम है पैसे का लेन देन करने का, तो वो रूटीन का काम का क्या मतलब हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसका काम ही क्योंकि वही था। तो एनी कैश फ्लो विच इज अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट रिसीव, चाहे वो कैश इनफ्लो हो गया, इंटरेस्ट पे रिसीव किया तो, अब इंटरेस्ट पे किया तो कैश आउटफ्लो हो गया, क्योंकि वो फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऐसे ही सेम फाइनेंशियल कंपनी में अगर डिविडेंड आपने रिसीव किया है तो वो भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही जाएगा, क्योंकि उसका
रूटीन का काम है वो। लेकिन अगर उस कंपनी ने, फाइनेंशियल कंपनी ने अगर डिविडेंड पे किया है तो वो कहाँ जाएगा? वो फाइनेंसिंग कंपनी में, क्योंकि डिविडेंड आप किसको दे रहे हो? अपनी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं। अपनी कंपनी में जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो रूटीन का काम नहीं है, वो आपकी कैपिटल का पार्ट है। तो कैपिटल के अगर पार्ट पे जो शेयर होल्डर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, वो उनको अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ cash flow from financing activities. I hope it's clear. Now the second nature, in case the company is not of financial nature, तो आप क्या करोगे? कोई और कंपनी है जिसका फाइनेंस का काम रूटीन का नहीं है, तब आप क्या करेंगे? अगर कैश फ्लो होता है इंटरेस्ट पे करने से, if there is cash outflow which is arising from interest paid, it should be classified as cash flow from financing activities. और अगर आपने डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव किया है तो वो क्या जाएगा? दैट वुड बी अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सिमिलरली अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो वो कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। डिविडेंड पे जो आप कर रहे हो वो तो फाइनेंसिंग में ही जाएगा क्योंकि वो आपका कैपिटल का पार्ट है। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वो आपका इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे या तो आपने रिसीव किया होगा या आपने लॉन्ग टर्म लोन्स जो आपने लिए हुए थे उन पे आपने इंटरेस्ट पे किया होगा। तो एनी इंटरेस्ट पेड और एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड वो कहाँ कहाँ चले जाएंगे? अगर इंटरेस्ट पे किया है तो वो आपका चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, और इंटरेस्ट अगर आपने रिसीव किया है या डिविडेंड रिसीव किया है वो आपका इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। इनकम टैक्स की जहाँ तक बात है, इनकम टैक्स में क्या है? इनकम टैक्स पेड इज क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो आपने अभी ट्रांजेक्शन्स करके दिखाई थी, जहाँ आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया था और उसमें एडजस्टमेंट्स की थी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स की, और जो दूसरी क्लासिफिकेशंस में एंट्रीज चली जाती है डिविडेंड या इंटरेस्ट की, उसके बाद आपने इंटरेस्ट आपने टैक्स की पेमेंट दिखाई थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अगर इनकम टैक्स के लिए अगर आपने टैक्स पे किया है और क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश जो आप दे रहे हो टैक्स की फॉर्म में वो आपका जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि वो आपने जो इनकम जो प्रॉफिट आपने एक अकाउंटिंग ईयर में अर्न किया है उस पर आप गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में पैसा देते हो। तो वो पैसा कहाँ से आया? इनकम। इनकम कहाँ से आई? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या ऑपरेशंस करके, रूटीन के काम करके जो आपने इनकम अर्न की थी उस पर आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया, तो वो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखा दिया क्लासिफाई करके। मगर अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड टैक्स है, तो फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बजाय दूसरी किसी एक्टिविटी के अंडर में जाएगा जो भी मेंशन होगा। जैसे आपने मान लीजिए एक बिल्डिंग ली हुई थी, उस बिल्डिंग को आपने 20 लाख रुपए पे बेचा है। जब आपने 20 लाख रुपए पे वो बिल्डिंग को बेचा है, उस पे आपको कैपिटल गेन का जो टैक्स था, जो कैपिटल गेन आपको जो मिला है उस पे बेचने पर, उस पे जो टैक्स था वो 2 लाख रुपए की कैलकुलेशन आती है, which 2 lakh rupees is the basically tax on capital gain at the time of selling of a building। वो जो टैक्स है वो कैपिटल गेन का हिस्सा है, इनकम टैक्स नहीं है वो आपके लिए। टैक्स तो है, पेमेंट तो आप कर रहे हो, लेकिन दैट इज नॉट द इनकम टैक्स। आपकी इनकम नहीं थी, नॉर्मल रूटीन ऑपरेशन से जो आपने इनकम करी वो उसका हिस्सा नहीं है। तो ये जो 2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन जाएगी ये कहाँ जाएगी? क्योंकि ये बिल्डिंग बेची थी, तो बिल्डिंग कहाँ होती है? इन्वेस्टमेंट आपकी मानी जाती है, फिक्स एसेट है, तो वो कैश फ्लो आपका आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो in case you have to pay a tax on capital gain, that will be वो आपका जो कैपिटल गेन है बिल्डिंग को बेच के, फिक्स एसेट को बेच के अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो वो आपका कहाँ चला जाएगा? कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऐसे ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी होती हैं जो आपके अकाउंट्स में आप शो करते हैं। जैसे कैश फ्लो हो सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से बैड डेट्स रिकवर्ड, आपने प्रोविजंस हम बनाते हैं, बैड डेट्स दिखाते हैं, वो रिकवर हो गए हैं, पैसा आपके पास आ गया है, इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम का पैसा मिल गया है, लॉटरी से आपने जीत के पैसा कर लिया है। तो ये आप अलग अलग तरीके से कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जैसा भी क्वेश्चन मेंशन करेगा उसके हिसाब से आप इसको उन्हीं क्लासिफिकेशन करके एक्टिविटीज़ के अंदर में शो करेंगे।
Sometimes you may be involved in the foreign currency also. तो फॉरेन करेंसी कैश फ्लो अगर है तो आप क्या करोगे, उसको एक्सचेंज रेट पे जिस दिन कैश फ्लो हुआ है उस दिन का जो एक्सचेंज रेट होगा उस पर आप उसको कन्वर्ट करेंगे, और उस एक्सचेंज के टाइम पे देयर मे बी अ गेन और देयर मे बी अ लॉस, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर दिन करना है जिस दिन वो कैश फ्लो हुआ है, और एक्सचेंज रेट जो भी होगा उसको कन्वर्ट करने के बाद यू मे हैव द गेन और यू मे हैव द लॉस। उसको कैश बैलेंसेस के साथ में आपको रिकंसाइल करना है और वो पीएल एंड अकाउंट में आपका नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स जो आपकी थी, ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स में एक ट्रांजेक्शन ये हो सकती है कि मान लीजिए कंपनी ने इक्विटी शेयर्स को रेज किया और उसके बदले में कोई एसेट उनको दे दी अपनी बिजनेस में, तो कैपिटल भी बढ़ गई और एसेट्स भी बढ़ गए, लेकिन कैपिटल जो बढ़ी उसके बदले में ही आपने कोई उनको एसेट दे रखा है। तो जो ट्रांजेक्शन हुई है, देयर इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ रेजिंग ऑफ कैपिटल विद द एसेट, तो उसमें कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं होने की वजह से वो सिग्निफिकेंट तो है कंपनी के लिए, लेकिन वो कहीं पे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगी, क्योंकि इस तरह की ट्रांजेक्शन्स में कहीं पर भी कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, okay, now I'm just coming to the question. Now please go through the question. The question says जनवरी 2015 और फिर दूसरे कॉलम में 31 दिसंबर 2015 का दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो पहला कॉलम है उसके जो बैलेंसेस हैं वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के थे, प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस हैं, और 31 दिसंबर 2015 जो करंट ईयर है उसका सेकेंड कॉलम में फिगर्स दिए हुए हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में पहले करंट ईयर वाला कॉलम बना देते हैं और फिर प्रीवियस ईयर का कॉलम बना देते हैं। तो आप ये ज़रा प्लीज़ ध्यान रखिएगा व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन कि करंट ईयर का कॉलम कौन सा है और प्रीवियस ईयर का कॉलम कौन सा है, अदरवाइज अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपका आंसर गड़बड़ हो सकता है। Now come just read the question. Balance sheet of current and previous year and current year is given to you फॉर्मेट पे, जिसमें कि शेयर होल्डर्स में शेयर कैपिटल आपको दी हुई थी 6,75,000 रुपीज़ की, करंट प्रीवियस ईयर की थी, और 7,07,500 की बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल दी हुई थी करंट ईयर की। तो अगर मैं सिर्फ इन्हीं दो फिगर्स को देखूं तो 6,75,000 से शेयर कैपिटल मेरी कहाँ चली गई, 7,07,500 पे। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है। आई होप कि आप लोग रजिस्टर पेपर पेंसिल वगैरह सब लेके बैठे हुए हैं एंड यू आर जस्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो 7,07,000 रुपीज़ से जो आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया वो आया 32,500 रुपये का शेयर कैपिटल में। रिजर्व्स एंड सरप्लस की आपको फिगर दी हुई है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 14% डिबेंचर्स, फिर आपको करंट लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, then you have the fixed assets, plant and machinery, non-current investments, then you have current assets। और उसमें अब देखिए नोट्स में जो आपको दिया हुआ है, नोट्स में यू हैव द शेयर कैपिटल का जो फिगर था, शेयर कैपिटल में जो आपको पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 32,500 इन द शेयर कैपिटल जो आपने बैलेंस शीट से देखा था। लेट मी जस्ट अगेन हैव अ लुक ऑन दैट। जो यहाँ पर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दी हुई थी उसमें सिर्फ एक फिगर दी, दो फिगर्स दी हुई थी, 7,07,500 करंट ईयर की कैपिटल थी और 6,75,000 प्रीवियस ईयर की कैपिटल थी। अब इसकी जो बाइफिकेशन आपको दी हुई थी वो आपको क्या दी हुई है, शेयर कैपिटल में यू हैव इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, जो प्रीवियस ईयर की थी वो 4,05,000 की थी, और करंट ईयर में इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 रुपीज ईच इज 5,72,500।
और बाकी जो प्रेफरेंस शेयर्स थे 12% प्रेफरेंस शेयर्स थे 100 रुपीज़ के 2,70,000 और 1,35,000 रुपीज़। नाउ व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपके लिए इजी क्या है, कुछ स्पेस छोड़ के आप फॉर्मेट जब बनाएंगे तो आपको पता है कि पर्टिकुलर फॉर्मेट है। सबसे पहले आइटम आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसके बाद आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और थर्ड आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये अगर आप फॉर्मेट बना लेते हैं उसके बाद, नाउ इफ आई जस्ट हाईलाइट दिस, now the first part is cash from operating activities, second part would be from investing activities, third part would be from फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर ये तीन तरीके के आपके एक्टिविटीज से क्लासिफिकेशन करके कैश फ्लो आ जाएगा। अब इसके लिए जो सिंपल तरीका है वो बनाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले जो बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए हुए होते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करिए। तो आपके ये दो फिगर्स आपको क्वेश्चन में दी हुई होती हैं। एज यू कैन लुक इन दी क्वेश्चन, बैलेंस शीट में जब आप देखेंगे तो आपको करंट एसेट्स में जो कैश और कैश इक्विवेलेंट आएंगे वो करंट एसेट्स से ही आएंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपको करंट एसेट्स का फिगर दिए हुए हैं उसमें आपको लिखे हुए हैं दो टर्म्स, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 54,000 और दूसरा है करंट ईयर का 2,01,250 का। इसका मतलब जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है वो क्या है 54,000 रुपीज़ का, और करंट ईयर का यानी क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो है 2,01,250। बाकी और कुछ इसमें नहीं दिया हुआ था, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ये 54,000 रुपीज़ का आपको दिया हुआ है और 2,01,250 का क्लोजिंग बैलेंस भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा शुरू में, क्या मतलब है सर, 54,000 रुपीज़ मुझे स्टार्टिंग में मेरे पास पैसे थे और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मेरे पास है 2,01,250। जो डिफरेंस है 1,47,250 का, इसका क्या मतलब है, बढ़ गया ना, पहले कम था और अब शुरू लास्ट में मेरे पास बढ़ गया है। तो 1,47,250 वो टोटल इंक्रीज है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो कि कैश या कैश इक्विवेलेंट में अमाउंट किसी ना किसी फॉर्म में एक्टिविटी से बढ़कर मेरे पास आया है। तो ये जो बेसिकली आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के टाइम पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, नेट इंक्रीज ही तो कर रहे थे कि इंक्रीज या डिक्रीज क्या है कैश इक्विवेलेंट का। तो ये आंसर आपको क्वेश्चन शुरू करने के टाइम पर ही मालूम है कि यू विल बी गेटिंग द आंसर इन द फॉर्म ऑफ नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टू बी 1,47,250। तो इसका मतलब जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसका जो भी नेट इम्पैक्ट आएगा इट शुड बी 1,47,250। अगर बाई चांस आपका आंसर 1,47,250 नहीं आता है, इसका मतलब आपने कहीं कोई एरर किया है। तो आप इसको टैली कर सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मेट पे ही करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो जल्दबाजी में वो क्या करते हैं, नेट इंक्रीज मान लीजिए आया 1,45,250, आना कितना चाहिए था 1,47,250, कैलकुलेशंस में आपका कितना आ रहा है 1,45,250, 2,000 रुपये का कहीं डिफरेंस आ रहा है, उसमें वो ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देते हैं और बजाय बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस मैच करने के, जो कि 2,01,250 आना चाहिए था, वो उनका 2,000 रुपये से कम आएगा। तो आंसर अगर आप टैली करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि बैलेंस शीट से ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दीजिए, नेट इंक्रीज की या डिक्रीज की फिगर आपको ऑलरेडी एडवांस में पता होगी। द मोमेंट यू हैव दी figures of A, B and C, net cash flows from operating, financing and investing activities, आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। Now coming to the question, अब आपने तीनों फिगर्स लिख दी हैं, अब आप पहले मैं एडजस्टमेंट्स को पढ़ रही हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन सी एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट को इम्पैक्ट करेगी। पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी। इसका मतलब जो मेरा फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा उसमें एक एडजस्टमेंट बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट होगी। और डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स मुझे कहाँ करनी होती है,
डेप्रिसिएशन जो मैंने डिस्कस किया था फॉर्मेट में, उसमें कहाँ था, डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड पे, विच बेसिकली डिक्रीजेज माय प्रॉफिट फिगर। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम करते हैं जिसमें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, वहाँ डेप्रिसिएशन को हम ऐड करते हैं। तो मैं एक, ये मेरी 81,000 रुपीज़ की एक एडजस्टमेंट कैश फ्लो में कहाँ जाएगी, व्हेन आई जस्ट शो दिस टू यू। मैंने ये वाली फिगर ली, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 81,000। जो मैं फिगर्स लेती जा रही हूँ, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट ताकि आपको ये पता चल जाए कौन कौन से फिगर्स मैंने एडजस्टमेंट्स हम लोग कर चुके हैं। तो जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसमें डेप्रिसिएशन हम लोग ऐड करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का जो पहली ट्रांजेक्शन थी वो मेरी यहाँ पर आ गई। इसी के साथ अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट भी देख लेती हूँ, हाथ क्या थी, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट जो मुझे दिया हुआ था वो दिया हुआ है 6,88,500 लास्ट ईयर का बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था, और 8,37,000 क्लोजिंग बैलेंस है। नाउ इफ आई प्रिपेयर दी मशीनरी अकाउंट, क्योंकि अभी मुझे बाकी एडजस्टमेंट्स नहीं मालूम, डेप्रिसिएशन भी है, हो सकता है कुछ परचेज हो सकता है कुछ सेल हो, तो सिंपलेस्ट वे में व्हाट आई कैन डू इज आई जस्ट प्रिपेयर दी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इन दी वर्किंग नोट्स for your reference. Now the opening balance was 6,88,500 and the closing balance is 8,37,000 और depreciation का मुझे मालूम है वो है 81,000. Now what if I prepare the machinery account? मैंने यहाँ working notes 1 में machinery account बनाया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 6,88,500 का, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ था 8,37,000 रुपीज़ का, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। एडजस्टमेंट से अभी तक आपको क्या पता चला था, डेप्रिसिएशन आपको पता चला था 81,000 रुपीज़ का, वो एडजस्टमेंट मैंने यहाँ कर दी। अब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट अगर है फिक्स एसेट की, वो उसके अकाउंट में जा रही है अगर वर्किंग नोट्स में आप अकाउंट्स बना रहे हैं, और दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन एनी फिक्स्ड एसेट वुड बी ट्रांसफर्ड और would be added back to net profit after tax under the cash flow from operating activities, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। आई होप कि अभी तक आपको क्लियर है और आप शायद ये क्वेश्चन साथ में मेरे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर जब आप खुद बनाएंगे साथ साथ तो आपको इजी हो जाएगा समझना इसको। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के लिए हमने ये कर ली। अब हम एडजस्टमेंट्स में देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी से क्या रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने खत्म कर दी है, फर्स्ट एडजस्टमेंट बेसिकली हम लोग कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड adjustment which is related to plant and machinery, which is the fourth information given in the question. The question says that plant and machinery with a book value of 54,000 rupees was sold for 33,750. इसका क्या मतलब है कि अकाउंटिंग पीरियड में आपने एक मशीन, प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट जिसकी बुक वैल्यू 54,000 थी उसको 33,750 पे बेचा है। तो अब ये आप लोगों ने तो फाइनल अकाउंट्स में सीखा भी हुआ है कि इफ यू सेल द प्लांट एंड मशीनरी ईदर द कॉस्ट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन और द बुक वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में सिंपल है, बुक वैल्यू आपको दी हुई है 54,000 रुपीज़ की और 33,750 का उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो बुक वैल्यू में से अगर मैं कंपेयर करूँ सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में 20,250 का लॉस है प्लांट एंड मशीनरी के बेचने के टाइम पे। हैड इट बीन द कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट वैल्यू दी हुई होती 54,000 रुपये, तो आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी होती डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो कॉस्ट को आपको बुक वैल्यू पे कन्वर्ट करते और फिर उसके बाद आप उसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके ये कैलकुलेशंस करते कि लॉस है या प्रॉफिट है प्लांट एंड मशीनरी को बेचने के टाइम पे। अब ये वाली एडजस्टमेंट को हम कहाँ क्या एडजस्ट करेंगे, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक है 33,750 जो सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब ये पैसा आपके पास आया होगा, और बाकी क्या है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इस पर्टिकुलर केस में। तो दो ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी, एक आपके पास कैश इनफ्लो आया है मशीनरी को बेचने के बाद। अब मशीन क्या है आपके लिए, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट है, तो ये किस केस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के हेडिंग में जाएगा। तो जो कैश इनफ्लो है 33,750 का, दैट इज द कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बाय सेलिंग द प्लांट एंड मशीनरी। और दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है, आपने
20,250 रुपए का लॉस इनकर किया बाय सेलिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब ये एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ जाएंगे? अब सबसे पहले तो मैं आपको अकाउंट में ही, इसके वर्किंग नोट्स में जो हमने अकाउंट बनाया उसी पे जाते हैं। बैंक अकाउंट से देखिए 33,750 का आपने मशीन को बेचा था, जो 54,000 रुपए की बुक वैल्यू थी, 33,750 पे आपने उसको बेचा था, और उसके ही बेसिस पर आपके पास फिगर आई थी प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपने एडजस्टमेंट्स की थी 20,250 की। ये 20,250 आपने कहाँ दिखाई हुई है? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई हुई है ऑलरेडी। तो नेट प्रॉफिट में से आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। दूसरा, बैंक में जो पैसा ट्रांजेक्शन आई है 33,750 की, ये क्या है? दिस इज दी कैश यू हैव रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये कैश इनफ्लो हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अब जब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ फिगर ऑफ 2,83,500 विच इज द बैलेंसिंग फिगर। अब ये 2,83,500 जो बैलेंसिंग फिगर आई है, इसका क्या मतलब है? डेबिट साइड पे है। इसका मतलब है कि पूरे साल में आपने 2,83,500 की कोई ना कोई मशीन को परचेज किया होगा। अब इस अकाउंट में से ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ जाएंगी? 81,000 डेप्रिसिएशन था, ये हमने कहाँ दिखाया था? हमने ऐड किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, ये हम करके दिखा चुके थे। जो बैंक अकाउंट में आपकी दो फिगर्स हैं, एक डेबिट पे है, एक क्रेडिट पे है, एक इनफ्लो है, एक आउटफ्लो है। 33,750 is the cash inflow on the sale of plant and machinery and 2,83,500 is the cash outflow, क्योंकि परचेज की होगी तो कैश आउटफ्लो हो गया ऑन द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये दोनों कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कहाँ चले जाएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ये कैश इनफ्लो था, तो 33,750 कैश इनफ्लो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा, और 2,83,500 is the cash outflow, so it will be deducted in cash flow from investing activities। अब लास्ट एक ट्रांजेक्शन जो आपकी बची है, वो कौन सी बची है? प्रॉफिट या लॉस की। इस पर्टिकुलर केस में क्या है? देयर इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 20,250। इसको आप क्या करेंगे? लॉस था, तो लॉस मैंने कहाँ दिखाया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ दिखाया होगा? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे दिखाया होगा, इसका मतलब मैंने प्रॉफिट की फिगर को कम करके दिखाया होगा, जो कि एक्चुअली मुझे रिवर्स करना है। तो व्हाट आई विल डू इज दिस 20,250 व्हिच इज द लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी has to be added back to net profit before tax, वहाँ adjustment कर देंगे। Had it been instead of loss, had it been the profit, अगर ये profit होता तो मैंने कहाँ दिखाया होता? P&L के क्रेडिट साइड में, यानी प्रॉफिट मैंने बढ़ाकर दिखाया होता, तो मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लूंगी, तो अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता तो मैं वहाँ से इसको डिडक्ट कर देती। अब ये चारों एंट्रीज, what I'll do is I'll just transfer these four entries in your cash flow statement। देखिए 2,83,500 जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर आई थी फॉर द परचेज ऑफ मशीन, प्लांट एंड मशीन, वो आपने कहाँ दिखाई? आपने कैश क्या था? कैश आउटफ्लो था ना, परचेज किया था, तो मैंने ब्रैकेट में दिखा रखी है, इसका मतलब ये कैश आउटफ्लो है। आपने सेल भी किया था 33,750 का, ये आपके लिए कैश इनफ्लो था, तो ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा में जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थे, उसमें मैंने क्या किया? डेप्रिसिएशन हम लोगों ने ऑलरेडी करके दिखाया हुआ था 81,000 का ऐड। उसके अलावा मुझे लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो दिखाना है। इस केस में क्या था? लॉस था सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो मैंने क्या किया? देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया हुआ, क्योंकि मैंने AL में इसको डेबिट साइड पे दिखाया हुआ, प्रॉफिट मैंने कम करके दिखाया था, तो अब यहाँ मुझे प्रॉफिट वापस ऐड करना पड़ेगा। नाउ व्हेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, नाउ आउट ऑफ दिस 6 additional information we have covered 2. Now the second information is regarding the interim dividend of 15% which was paid on equity shares, and the additional shares were issued on 31st December 2015। अब यहाँ तक ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरिम डिविडेंड आपने 15% का इक्विटी शेयर्स को दिया है, इट वाज पेड, और जो बाकी एडिशनल शेयर्स कुछ भी जो भी होंगे सॉरी
वो आपने इशू किए हैं 31 दिसंबर 2015, इसका मतलब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल और अकाउंटिंग पीरियड। इसके अलावा डिविडेंड से रिलेटेड और ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हैं? प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम किए हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड आपने दिया हुआ है और डिबेंचर्स दिया हुआ है, तो इंटरम डिविडेंड। अब आप आ जाइए शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल की जब मैं बात करती हूँ तो शेयर कैपिटल में आपके पास दो कैटेगरीज थी। एक थी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ ईच की 4,05,000, और एट द एंड ऑफ द ईयर इट वाज 5,72,500। ठीक है। अब मैं अगर शेयर कैपिटल की बात करूं और उसमें 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे आपके 100 रुपीज़ ईच पे 2,70,000, और क्लोजिंग बैलेंस था 1,35,000 का। नाउ इफ आई जस्ट मेक द एडजस्टमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अगर मैं करती हूँ तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 2,70,000 रुपीज़ मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,70,000 यहाँ आ गया। क्लोजिंग बैलेंस था 1,35,000 रुपीज़ का, यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन और थी वो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो थी वो आपकी थी थर्ड इन्फॉर्मेशन, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। आपने 15% के जो आपके शेयर होल्डर्स थे उनको 15% पे रिडीम कर दिया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए उसके अलावा में आपने डिविडेंड दिया 32,400 को, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब हम इसका अकाउंट बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें थी? ओपनिंग बैलेंस था 2,70,000 का, क्लोजिंग बैलेंस था 1,35,000 रुपीज़ का, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट परचेज किया, सेल की, इशू की, फर्दर की या रिडम्पशन की नहीं थी। आपने रिडीम जो किए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई थी कि जो रिडीम किए हैं वो आपने 15% पर रिडीम किए हुए हैं। द क्वेश्चन सेज द प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। इसका क्या मतलब है? जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था 2,70,000 का और क्लोजिंग बैलेंस था 1,35,000 का, इसका मतलब जो बाकी अमाउंट है, if I just verify these two, if I take the difference between these two figures, that shows me the difference in preference share capital. वो कितना है? 2,70,000 minus 1,35,000 gives me the amount of preference share capital which has been redeemed during the year. That comes out to be 1,35,000 rupees. इसका मतलब इस अकाउंटिंग ईयर में मैंने 1,35,000 रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर जितने थे मेरे पास उनको रिडीम करा, और रिडीम मैंने किया 15% प्रीमियम पे। तो आपने क्या किया? 1,35,000 तो उनका ही पैसा था, उस पर 15% आपने एक्स्ट्रा दे दिया, तो उसका 15% जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 20,250। तो आपने जो प्रीमियम पे रिडीम किया है तो 20,250 इज द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और बैंक से जो पैसा आपके पास गया है, आपने शेयर होल्डर्स रिडीम किया ना शेयर्स को, तो पैसा आपके पास से चला गया, तो वो आपके लिए आ गया बैलेंसिंग फिगर 1,55,250 के इन टोटल इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम यू हैव रिडीम्ड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसमें आप देखिए दो चीज़ें हैं जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पे लेके जानी है। एक है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि इसमें भी आप एक्चुअली पैसा दे रहे हो, और एक है जो पैसा आपका है 1,55,250 विच इज इंक्लूसिव ऑफ शेयर प्रीमियम। अब इसकी एडजस्टमेंट्स आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ करेंगे? नाउ दिस टोटल अकाउंट इज बीइंग कवर्ड प्रेफरेंस शेयर्स का। अब इसको कहाँ एडजस्टमेंट्स करेंगे? कैश कैपिटल इसमें शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, तो ये कहाँ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 1,55,250 was the total amount which was paid to the preference share capital which was inclusive of premium. प्रीमियम भी दिया तो है ही आपने 1,35,000 प्लस प्रीमियम आपने दिया, तो टोटल जो पैसा दिया है इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम हैज बीन पेड टू द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये कहाँ चला जाएगा? कैश आउटफ्लो था, तो ये आपका जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, माइनस हो जाएगा कैश आउटफ्लो जो आपका था। अब इसमें एक चीज़ क्या थी, एक तो
प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा था 1,55,000 का, और एक आपके लिए उस पर प्रीमियम का अमाउंट था। ये जो आपने प्रीमियम दिया है यहाँ तो दिखाई दिया, क्योंकि दिस अमाउंट 1,55,250 इज द इंक्लूसिव ऑफ योर प्रीमियम। लेकिन ये प्रीमियम जो आपने दिया है ये आपने कहाँ शो किया होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाया होगा। इसका मतलब जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है तो उसमें भी उसकी एडजस्टमेंट आपने करके दिखाई होगी। आपने एक्सपेंस करके दिखाया होगा ना कि मैंने प्रीमियम दिया है, तो आपने कहाँ दिखाया होगा, डेबिट साइड पे। तो वो आपको क्या करना है, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है, वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, वहाँ आपने दिखा दिया। और यहाँ पर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जब आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हो तो यहाँ पर 20,250 विच इज़ दी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी दिखाते हैं, वो यहाँ पर हम ऐड बैक करके दिखाएंगे। प्रीमियम के लिए आपको एक एडजस्टमेंट और दी हुई थी, फिफ्थ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डिविडेंड की, विच सेज दैट प्रेफरेंस डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 32,400, 32,400 का आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है। अब जब आपने 32,400 का डिविडेंड पे किया होगा तो वो भी आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे दिखाया होगा, देयर बाय इम्पैक्टिंग द प्रॉफिट फिगर। तो वो भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्टमेंट्स करते हुए हम इसको ऐड करके दिखा देंगे 32,400 विच इज द प्रेफरेंस डिविडेंड पेड टू दी शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने दिखाया हुआ था और ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है, इट इज द पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये 32,000 कहाँ चला जाएगा, 32,400 ये आपने पैसा दिया है, पैसा दिया है इसका क्या मतलब था, डिविडेंड पे किया था, कैश आउटफ्लो था, तो ये 32,400 आपका प्रेफरेंस डिविडेंड का फॉर्म का के पेमेंट 32,400 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो आपने 18,906 जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये आपने पे किया है डिवेंचर्स को। डिवेंचर होल्डर्स आपके कितने थे, बैलेंस शीट के हिसाब से आपके पास थे 14% के डिवेंचर होल्डर्स थे। शुरू में 1,35,000 के थे, बाद में आपके पास 2,70,000 रुपीज़ के डिवेंचर्स थे। ठीक है, अब इनको आपने जो आपके डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको जो एक्चुअली पेमेंट की है वो 18,900 पे किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो दिस 18,000 अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो ये वहाँ चला जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जब मैंने डिवेंचर्स को इंटरेस्ट पे किया है तो इट इज अ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो होने की वजह से मैंने क्या किया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसको डिडक्ट करके दिखा दिया है। लेकिन ये मैंने कहाँ दिखाया होगा, स्टेटमेंट में भी दिखाया होगा पी एल एंड की, अगेन डेबिट किया होगा। तो मुझे इसको वापस रिवर्स करने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट ऐड दिस बैक इन दी नेट एडजस्टमेंट्स बिफोर, जो मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्टमेंट्स की हैं। तो ये भी फिगर दो जगह आपकी आ जाएगी। तो जितना भी इंटरेस्ट या डिविडेंड की ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से रिवर्स हो जाएगी, अब वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की ऐसे हटकर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वाले पार्ट पे चली जाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रह गई है which says that an interim dividend of 15% was paid to the equity shareholders and the additional shares were issued on 31st December 2015। इसका मतलब पहले आपको क्या देखना है कि जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कितने हैं। जो आपने एडिशन किया है वो कब किया है, एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब वो डिविडेंड तो उनको तो जाएगा नहीं, तो जो बाकी पहले वाले होंगे उन्हीं को ही आप डिविडेंड दोगे। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने थे पहले, पहले 5,72,000 के आपके पास 5,72,500 के इक्विटी शेयर्स थे एट द एंड ऑफ द ईयर, और 4,05,000 रुपीज़ के आपके पास स्टार्टिंग में इक्विटी शेयर होल्डर्स थे। तो जो डिफरेंस आया वो कितने का आ जाएगा, जो आपका डिफरेंस होगा उन पर आपने 15% का जो इंटरिम डिविडेंड था वो दिया था।
जो क्लोजिंग बैलेंस था शेयर होल्डर्स का वो कितना था 5,72,500 और स्टार्टिंग में आपके पास था 4,05,000 रुपीज़ का। तो जो डिफरेंस आया 4,05,000 रुपीज़ के हिसाब से जो डिफरेंस था आपका वो आपने कब परचेज किया था 31 दिसंबर को। इसका मतलब जो भी स्टार्टिंग के आपके शेयर होल्डर्स थे सिर्फ उन्हीं को ही आप 15% इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो 15% डिविडेंड वुड बी पेड ओनली टू द शेयर होल्डर्स who were there in the starting of the accounting year, that means 4,05,000 rupees। तो 4,05,000 रुपीज़ पे अगर आप 15% के हिसाब से डिविडेंड देते हैं तो वो अमाउंट आ जाता है 60,750 का। दैट 60,750 वुड बी पेड एज एन इंटरिम डिविडेंड टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का मतलब जो प्रीवियस ईयर जो स्टार्टिंग में आपके पास थे, क्योंकि एडिशनल आपने एंड में ही करे हैं। नाउ दिस 60,750 क्या है, शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है, तो कहाँ जाना चाहिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो 60,750 आपने जो डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को वो आपने कैश आउटफ्लो इंटरिम डिविडेंड का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डिडक्ट करके दिखा दिया। पीएलएन में भी आपने दिखाया होगा, तो वापस से आपको जैसे हमने बाकी सारी एंट्रीज में एडजस्टमेंट्स किए सेम, क्योंकि पे किया हुआ है पीएलएन में भी दिखाया हुआ है, तो ये भी आपने ऐड बैक करके यहाँ पर दिखा दिया है। अब आई होप कि एडजस्टमेंट्स आपको सारी क्लियर हैं। we have covered all the adjustments. Now coming to the balance sheet. अब सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए मुझे स्टार्टिंग क्या चाहिए थी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे चाहिए था। अब मैं पहले उसको देखती हूँ कि वो मुझे कितना दिया हुआ है। Now when I have a look on the बैलेंस शीट में मुझे क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट की फिगर नहीं दी हुई है, बैलेंस शीट में मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है और नोट्स में उसकी कहीं पर भी कोई बाइफिकेशन करके नहीं दिखाई हुई है। इफ़ यू जस्ट लुक ऑन दी नोट्स में मुझे सिर्फ शेयर कैपिटल की बाइफिकेशन दी हुई थी, डिटेलिंग दी हुई थी एंड नो फर्दर डिटेल्स ऑफ सरप्लस एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस इज देयर। इसका मतलब मैं ये मान रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसा कहाँ से आता है, प्रॉफिट से आता है। तो व्हाट आई जस्ट डू इज कि जो मेरे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस के हैं वो मैं क्या मानूंगी, यही मेरा नेट प्रॉफिट की फिगर थी। तो ओपनिंग बैलेंस जो मेरा प्रॉफिट का था वो 1,35,000 का था और क्लोजिंग बैलेंस था मेरे पास 3,57,750 का। तो जो डिफरेंस आएगा 2,22,750 इंक्रीज हो गया, पहले कम था और अब बाद में मेरा ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब प्रॉफिट है, सरप्लस में मैंने जो डाल दिया है, तो जो बाकी बैलेंस इसमें कहाँ से आया होगा, अनटिल क्वेश्चन मेंशंस, तो मैं उसके हिसाब से देखती, बट अदरवाइज सारा प्रॉफिट का ही पैसा था। तो जो डिफरेंस है 2,22,750 दैट वुड बी टेकन एज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सबसे पहली फिगर हम लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये मैंने क्या करके दिखाया है, व्हाट आई विल डू इज दिस 2,22,750 इज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मेरे पास फिगर आ गई। इसके बाद बाकी जितनी कैन बी होल्ड फॉर अ वाइल। Okay, now let's continue. This 2,22,750 was the profit figure I have taken from the balance sheet. जो reserves and surplus की figure थी 3,57,500 less the opening balance of reserves and surplus 1,35,000. So this comes out to be the net profit before tax 2,22,750. Now this figure में इसमें जो adjustments हमने की थी, all the adjustments we have done, जो कि बैलेंस शीट से जो आपकी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स थी वो हम लोगों ने कर दी हैं। तो आपके पास जो फिगर आई है दैट इज 4,56,300 विच इज़ द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम क्या करते हैं, कैश जब जनरेट हो जाता है तो हम इंक्रीज और डिक्रीज भी देखते हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट लुक, नाउ सम नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर आई थिंक। Can we have 2 minutes break, please?